Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. So, any doubts from previous classes or from assignments, anything? Okay, so we would start with PowerPoint today. Just like Word, we will first of all open up PowerPoint by clicking on Start, clicking on Start menu and then writing PowerPoint. We can start with PowerPoint, or on the desktop, we right click and then we click on New, and then we select a PowerPoint file. New PowerPoint. What's PowerPoint used for? I'm sure you must have used it in some or the other class, for some or the other class assignments. Yeah, Creating presentations. creating presentations. What does that mean, वैसे? Say, if I would ask you, what is Word used for? What is Word used for? You would know it's for creating documents for professional as well as personal purposes, right? We create Word documents, we create documents which have different pages, multiple pages, and then we write the content on that. We can use those files. So, just like a physical notebook, on Word, we can have a notebook in e-form. So, what do you think presentations का क्या काम है? क्यों बनाते हैं हम presentation? Like when we have to present our reading a text document is different and is difficult to understand. Like for understanding a text document, we have to read it and it takes time. And when we have to show it to someone, like I have to present my idea to you, we can I can show you how things will work and what's my plan about things. Right. So, whenever you have to address an audience, whenever you want to make a point to a larger number of crew, you don't give them out the whole documents to read. It is time taking and nobody would listen to you. Everybody, if you would just give them the document, they can read it on their own. Why would they need you? But if you want to interact with an audience, like I have to say, give a class. तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँ बुक से पढ़ लो तो आप लोग पढ़ लोगे, मेरी क्या जरूरत है ना? तो प्रेजेंटेशंस क्या है? जो स्पीकर है, जो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, उसके लिए, ताकि उसको बोर्ड पे पॉइंट्स लिखे हुए मिल जाए, उसे लिखने ना पड़े, दैट इज वन थिंग. सेकेंडली, ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाए. इफ अगर कोई लेक्चर है, बोरिंग सा कोई सब्जेक्ट है और मैं बोलती को कुछ और ख्याल आने लग जाएंगे. बट इफ यू हैव समथिंग ऑन द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू, so you would know, even if you drift apart, you can see on the board, okay, we are on this topic, this is what's going on in the class. So that is the purpose of presentation, to connect the speaker with the audience. ऑल राइट. सो इसी से हमें क्या समझ में आया इस डिस्कशन से, कि वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है कि हम कोई भी टॉपिक कुछ भी है डिटेल्ड में हम लिख सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन में हम सब कुछ डिटेल में नहीं लिखते हैं. अगर अगेन सेम पॉइंट, अगर हम सब कुछ प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में या बोर्ड पे मैं लिख दूं, सब कुछ पूरा पूरा लिख दूं, स्टार्ट टू एंड, सेंटेंस टू सेंटेंस, फिर मेरी क्या जरूरत है? You can still read it on the board. I am not required. So the first rule of presentation is, आप जब भी बनाओगे, it has sentences have to be used, because आपकी जरूरत तभी पड़ेगी अगर आपकी प्रेजेंटेशन पे सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखे होंगे, पूरी डिटेल नहीं होगी. ओके, so
Let me share my screen. स्टार्ट पे क्लिक करके प्रेजेंटेशन टाइप किया मैंने, मेरे पास आ गई प्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन खुल गई. Remember, I'm not talking about an application on cell phone. This is an application software. Remember, first class में हमने बात की थी system software, application software. So all these Word, PowerPoint, Excel, Paint, all of these are application softwares. ठीक है, तो ये खुला. अब यहाँ पे मैंने blank presentation हम select कर लेंगे. Blank presentation. जैसे वर्ड में हमारे पास क्या होते हैं, पेजेस होते हैं. यहाँ पे हमारे पास होती है स्लाइड्स. स्लाइड्स, वी मूव ऑन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर. जैसे हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस को हम समझाते हैं, हम एक स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड पे जाते जाते हैं. हर एक टॉपिक को हम अलग अलग स्लाइड पे समझाते हैं, जिसमें सिर्फ मेन पॉइंट या बस हेडिंग्स लिखी होंगी, डिटेल नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दीज आर स्लाइड्स. स्लाइड्स के ओके, स्लाइड्स के साइड में जो लेफ्ट साइड पे, दीज आर कॉल्ड थंबनेल्स. मतलब स्लाइड्स के छोटे छोटे वर्जन जो साइड में है. ठीक है, इससे इससे बस एक हमें ब्रीफ एक पिक्चर पता चल जाती है कि हमारी प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं. उन स्लाइड्स को ऊपर नीचे उनको शिफ्ट करना है. जो आपने फर्स्ट बनाई थी, आप चाहते हो फोर्थ हो जाए, तो यू कैन जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से. ठीक है, तो ये थंबनेल्स होती हैं लेफ्ट साइड पे. ये हमारी स्लाइड्स. और जो सेम है, फॉर्मेट सेम है जैसे वर्ड में था. देयर आर डिफरेंट टैब्स, हर टैब के रिबन्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस वुड बी सेम एज वर्ड. मोस्ट ऑप्शंस तो मुझे बताने की फिर से जरूरत ही नहीं पड़ेगी. देयर इज अनदर थिंग, नीचे होते हैं स्पीकर नोट्स. स्पीकर नोट्स बाय डिफॉल्ट मेरे में नहीं दिख रहे थे, आई थिंक आप लोगों के में दिख रहे होंगे. नहीं दिख रहे तो स्क्रीन पे नीचे नोट्स लिखा हुआ है, उधर से आ जाते हैं. अब दिख रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स, जहाँ पे लिखा आया, दीज आर स्पीकर नोट्स. ये किस लिए है, ये मेरे रिक्वायरमेंट के लिए. ये ऑडियंस को नहीं दिखेंगे. जब मैं ऑडियंस को अपनी स्लाइड बड़ा करके दिखाऊंगी, बड़ी करके दिखाऊंगी, तब आप लोगों को ये नोट्स नहीं दिखेंगे. ठीक है, ये किस लिए है, सपोज मेरे को कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई मेरे को एग्जाम्पल देना है तुम लोगों को, किसी पर्टिकुलर कंपनी का. तो ऐसा तो नहीं है एक एग्जाम्पल है, देयर कैन बी मल्टीपल. कि बस मैं आज मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, तुम लोगों को कल जाके मैंने सब कुछ बोल दिया तुम्हारे सामने. आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट. तो वाइल प्रिपेयरिंग मैं अपने लिए यहाँ पे नोट्स बना सकती हूँ कि इस स्लाइड पे मेरे को ये एग्जाम्पल बोलना है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे मेरे को ये एग्जाम्पल बोलना है. सो दीज आर ओनली फॉर माई प्रिपरेशन, माई हेल्प. दीज वोंट बी विजिबल टू मी और टू यू वाइल आई एम प्रेजेंटिंग. ठीक है, जब मैं स्लाइड बड़ी करके फुल स्क्रीन करके आपको प्रेजेंट करूंगी तब ये नहीं दिखेगा. ओके, जैसे फाइल टैब है, फाइल टैब के ऑप्शन सेम है. कुछ यहाँ पे सेम ऑप्शन है. न्यू, ओपन, इन्फो. इन्फो वही जब हमने वहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए यूज किया था. प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन हम वो यहाँ पे भी कर सकते हैं. सेव, सेव एज या प्रिंट ऑप्शन. तो यहाँ ऑप्शंस फाइल पे सेम है. देन होम टैब पे होम, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू, व्यू. कुछ टैब्स भी हमारे सेम हैं, बट देन इन पे कुछ ऑप्शंस डिफरेंट होंगे. देखो होम टैब पे फर्स्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप के ऑप्शंस हमारे सेम है, वही कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, जस्ट लाइक वर्ड. लास्ट ऑप्शन था एडिटिंग, उसमें भी सेम था, फाइंड, रिप्लेस. ठीक है, अब ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये क्या है नए. स्लाइड्स ग्रुप. स्लाइड्स ग्रुप क्या है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज न्यू स्लाइड. तो बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास स्लाइड आ रही है वो क्या क्या लिखा है उस पर, क्लिक टू ऐड टाइटल. तो यहाँ पे अगर मैं जो भी मेरा टॉपिक है उसका टाइटल हम यहाँ पे डाल देंगे. तो whenever I would have to continue, I would have to write सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर. अगर मेरे को आपको पढ़ाना है तो फर्स्ट चैप्टर के लिए मेरे को नई स्लाइड चाहिए होगी, तो उसके लिए न्यू स्लाइड. अब न्यू स्लाइड पे क्लिक करते देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस.
What are these options? Title slide, title and content, section header, to content comparison and so on. तो ये सब किस लिए? तो नेक्स्ट अगर मेरे को आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताना है, कुछ थ्योरी पोर्शन कराना है, तो थ्योरी पोर्शन के लिए आई कैन सिलेक्ट दिस ऑप्शन टाइटल एंड कंटेंट. इसका होगा आई कैन राइट ऑन द टॉप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, and then if I would want to, I can write some points here. पेजेस पे क्या होता है, हम सारी चीजें पैराग्राफ्स पे लिखते हैं वर्ड में. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं, क्योंकि इसका पर्पस ही ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ मेन पॉइंट्स दें, हम यहाँ पे डिटेल्स ना दें, सिर्फ मेन पॉइंट्स दें. Okay, so we have more types of slides. टू कंटेंट कंपैरिजन, अगर मुझे दो टॉपिक्स में डिफरेंस दिखाना है तो वो मेरे पास स्लाइड का ऐसे कंपैरिजन होके आ जाएगा. आई मीन दो डिविजन्स होके आ जाएंगे. आई कैन राइट द हेडिंग्स हियर, से आई हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. So I can write hardware here, software here. I can write the individual points here. ठीक है. अब यहीं पे देखो थोड़े लाइट होके कुछ आइकन्स बने हुए हैं. ये आइकन्स किस लिए हैं? टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट. वी नो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द इंसर्ट टैब, बट सिंस प्रेजेंटेशन में इन चीजों का ज्यादा यूज होता है, तो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमें वो आइकन्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ताकि हम डायरेक्टली क्लिक करके वो एक इंसर्ट से वो सब आ जाएंगे जैसे वर्ड में आते थे. टेबल, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारे ऑप्शन सेम है. ओके, न्यू स्लाइड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज लेआउट. लेआउट किस लिए? कि थर्ड स्लाइड मैंने इंसर्ट की कंपैरिजन की, या बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज कि मेरे को इस स्लाइड पे कंपैरिजन नहीं चाहिए, इस स्लाइड पे मेरे को टेबल वो कंटेंट्स ही चाहिए, नॉर्मल बुलेट्स ही चाहिए. इन दैट केस, मतलब किसी एग्जिस्टिंग स्लाइड का अगर मेरे को लेआउट चेंज करना है, तो मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी यहाँ पे लेआउट पे से. लेआउट पे से कंटेंट की जगह विच एवर ऑप्शन आई वुड वांट हम वो कर लेंगे. ठीक है. अगर न्यू स्लाइड चाहिए तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर एग्जिस्टिंग स्लाइड का फॉर्मेट चेंज करना है तो ये वाला ऑप्शन. ऑल राइट. देन उसके सबकी जरूरत नहीं है. फॉन्ट ग्रुप, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जैसे वर्ड में थे वही. फॉन्ट टाइप, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक्स, वही सारे सेम ऑप्शंस हैं. देन उसके साइड में पैराग्राफ ग्रुप के भी सेम ऑप्शंस हैं, ये भी कुछ मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है. बुलेट्स, अलाइनमेंट. ठीक है. देन वी कम टू इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे, ओके, इंसर्ट टैब पे न्यू स्लाइड हमारे पास होम टैब में भी ऑप्शन है. टेबल हमें आती है, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, ये सब हमें आता है. शेप्स आती हैं, स्मार्ट आर्ट भी हमें पता है. चार्ट मैंने बोला है कि मैं एक्सेल में जब कराऊंगी तब कराऊंगी. एन इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज लिंक. लिंक, if you want to link your slides आपस में, if you want to link them, we have an option, or we can link saved somewhere on your system. ठीक है. or we can link it to a web page, so we can create links here. एग्जाम्पल देखते हैं. से फर्स्ट के बाद मैं एक और स्लाइड इंसर्ट करती हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स. टेबल ऑफ कंटेंट्स में फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स. फिर उसके बाद मैंने बनाया था यहाँ पे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में सेकंड पॉइंट इज डिफरेंस. ठीक है. नाउ सपोज आई वांट टू लिंक दीज वर्ड्स, so that if I click on difference, I would straight away go to third slide. ठीक है. इसके लिए क्या करेंगे,
जिस टेक्स्ट को हमें लिंक करना, जिस टेक्स्ट पे हमें लिंक बनाना है, जिस टेक्स्ट पे हमें हाइपर लिंक बनाना है, उस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट पे जाके लिंक, लिंक होगा या हाइपर लिंक होगा आप लोगों के में ऑप्शन, ठीक है। इंसर्ट पे जाके लिंक, यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या है। सबसे पहले टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब कौन सा टेक्स्ट वहां पे आना चाहिए जिसके ऊपर लिंक बनेगा। सिंस हमने वो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही आ गया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। देन वी हैव ऑप्शंस हियर कि लिंक टू एन existing file or web page or a place in this document, or you want to create a new document, or you want to link it to a place in this document. वी वांट टू, हम, मैंने अभी फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला, अभी फर्स्ट मैंने एग्जांपल जो दिया ये बोला है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को उसी प्रेजेंटेशन में अलग अलग स्लाइड से लिंक करना है। तो मतलब वी हैव टू लिंक विद द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, विद द प्लेस इन द डॉक्यूमेंट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को हमें किससे करना है, थर्ड स्लाइड से लिंक करना है। तो स्लाइड टाइटल्स हमारे पास है, तो थर्ड स्लाइड का जो टाइटल है, थर्ड स्लाइड का टाइटल है इंट्रोडक्शन, तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन विल क्लिक ओके। तब यहाँ पे देखो ब्लू और अंडरलाइन होके आ गया, शोइंग इट इज अ हाइपरलिंक। दिस हाइपरलिंक वुडंट वर्क डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो नहीं होगा। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, वी हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक टुगेदर, कंट्रोल प्लस क्लिक is working or not. You have to press control key on your keyboard, then a hand would show up. That means now the link is active. Now if you will click, you will move on to that slide जहाँ पे आपने लिंक किया, ठीक है। एक बार अभी फिर से दिखाती हूँ, डिफरेंस का फिर से दिखाती हूँ, बट बिफोर दैट जब हम ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं तब क्या करते हैं हम, ऐसे साइड में थंबनेल्स, ऐसी हमारी स्क्रीन नहीं दिखनी चाहिए। क्या दिखना चाहिए कि पूरी स्क्रीन पे हमारी स्लाइड आए, उसको बोलते हैं हम स्लाइड शो, स्लाइड शो। तो वो कैसे करते हैं, देखो स्लाइड शो का हमारे पास एक अलग से टैब है, स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड, आपको कहाँ से शुरू करना है स्लाइड शो। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग, सो माय फर्स्ट स्लाइड, सी पूरी स्क्रीन पे अब मेरी एक स्लाइड आ गई, देन दिस इज माय सेकंड स्लाइड। स्लाइड शो में लिंक हमारा डायरेक्टली काम करता है, उसके लिए हमें कंट्रोल की प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट। बट जब हम बना रहे हैं उस व्यू में हमें कंट्रोल और क्लिक दोनों साथ में करना पड़ेगा, लिंक पे अगर जाना है तो, ठीक है। फिर से एक और डिफरेंस का भी करके देख लेते हैं, सब लोग साथ साथ में करके देखो। स्लाइड शो इज नॉट विजिबल, हाँ अभी तो मैंने हटा दिया, बीच में भी नहीं दिखा था। नो मैम, नहीं है। अब नहीं दिख रहा, नो मैम। आप लोगों को क्या मेरी वही वैसे ही दिख रही है, पहले जैसे स्लाइड्स दिख रही है? यस मैम। मैम इंटायर स्क्रीन पे आता है स्लाइड शो, इस पे नहीं आता। मैम आपने सिर्फ पावर पॉइंट वाली विंडो को शेयर कर रखा है। ओके, अपने आप ही करके देखो फिर, अपने आप ही अपने अपने सिस्टम्स पे करके देखो। डिफरेंस का कैसे बनाएंगे, फिर से डिफरेंस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट लिंक, फिर फोर्थ स्लाइड से लिंक करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक ओके। तो हियर कम्स आवर सेकंड लिंक। यहाँ तक सबने किया? यस मैम, हो गया। So you can link within the same presentation. Now suppose next है introduction to computers. इससे रिलेटेड मुझे तुम्हें
कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, ठीक है, दैट डॉक्यूमेंट इज सेव्ड ऑन योर सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, इंट्रोडक्शन में से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है दैट आई वांट टू शो यू। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से लिंक क्रिएट करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाके लिंक, बट दिस टाइम वी विल सिलेक्ट दिस फर्स्ट ऑप्शन, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, एंड देन वी विल ब्राउज, हम वो वाली लोकेशन में रैंडमली कोई फाइल कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे जो भी फाइल सेव्ड है, ठीक है, जहां पे भी आपके पास वो फाइल सेव्ड है, सिलेक्ट दैट फाइल, क्लिक ओके। ये मेरा फिर से हाइपरलिंक बन गया, बट दिस टाइम इट विल लिंक अस टू another location, to another document. So it says hyperlinks can be harmful to your computer and data. To protect your computer, click only those hyperlinks from trusted sources. Since ये मेरा ही है, so this is a trusted source for me. Do you want to continue? Yes. So the document opens up. Within the same slides, within the same presentation, we can link to an external file. अच्छा, आप लोगों को दिखी नहीं होगी, फाइल मेरी खुल गई थी, बट सिंस मैंने पूरी स्क्रीन शेयर नहीं की हुई तो आपको ये फाइल नहीं दिखी। हाँ पुनीत बोलो। Nothing, ma'am. somebody said something, किसी ने हैंड रेज किया था शायद। चलो एनीवे, ये समझ में आ गया ना सबको, लिंकिंग सबने करके देख ली, हो गया, फाइल खुल रही है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज कि हम एक वेब पेज से भी लिंक कर सकते हैं। किसी वेब पेज से अगर मुझे लिंक करना है तो उसके लिए पहले वो वेब पेज आपको खोल के रखना पड़ेगा। मेरी इंस्ट्रक्शन सुनो और साथ साथ में करते जाओ। एक वेब पेज खोलो, कोई भी, अगेन पावर पॉइंट पे वर्ड सिलेक्ट करके इंसर्ट लिंक, लिंक पे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज पे। दिस टाइम व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे जो एड्रेस बार है, हम अपने वेब पेज से पूरा एड्रेस कॉपी करेंगे। डू वी ऑल अंडरस्टैंड कि पूरा एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं? वेब पेज पे जाके वेब पेज पे जाकर एड्रेस बार पे क्लिक करते हैं और वहीं से डायरेक्ट कॉपी, वहीं से डायरेक्ट कॉपी। एंड देन पावर पॉइंट में जाके एड्रेस में जाके पेस्ट, एंड देन क्लिक ओके। Now when you will click on this link, it will take you to that web page. Now another thing,
this can be done, linking can be done even on images or shapes. ठीक है, so मैं कोई शेप इंसर्ट करती हूँ यहाँ पे, एनीथिंग, सपोज मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है किसी शेप में, हिस्ट्री, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एज टेक्स्ट मैंने अलग अलग शेप्स बना के उसमें लिखा, सो मैंने यहाँ पे लिखा हिस्ट्री, एंड नाउ आई वांट टू क्रिएट अ लिंक ऑन दिस बॉक्स कि एज सून एज आई क्लिक ऑन दिस बॉक्स मैं कहीं और पहुंच जाऊँ। तो इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट लिंक, insert link, and then same process. You want it to go to, say मैंने इस पे करके प्रेजेंटेशन में फर्स्ट स्लाइड से लिंक कर दिया, स्लाइड शो स्टार्ट करने पर इसके ऊपर एक हैंड बना हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ लिंक, इस पे क्लिक करते ही आई रीच टू द फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब बताओ क्लियर है सबको? ये टेक्स्ट से भी, इमेज, शेप, किसी भी चीज से, सिंबल से, किसी से भी आप लिंक कर सकते हैं। मैम हम्म, मैम मेरी शेप के अंदर टेक्स्ट नहीं लिखा जा रहा। राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट। अच्छा ठीक ठीक, थैंक यू मैम। ओके, सो इंसर्ट के ऑप्शंस आर डन नाउ। सेम है बाकी, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, ये सब हमने उसमें किया, used in presentations। तो वीडियो में क्या करना है? If I want to insert a video here, वीडियो पे जाके, इंसर्ट पे जाके वीडियो, वीडियो पे जाके वेयर डू यू वांट, मतलब आपकी वो वीडियो कहाँ पे है, इसी सिस्टम पे सेव्ड है तो दिस डिवाइस, कहीं ऑनलाइन आपको कोई वीडियो चाहिए देन यू विल सिलेक्ट द सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अब सपोज इसी सिस्टम पे सेव्ड है तो पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, दिस डिवाइस। बाय द वे आप सबके पास यही दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं या कुछ और आ रहे हैं? ये दोनों ऑप्शन सबके पास आ रहे हैं? यस मैम। हम्म, एक मिनट। हाँ, बाय डिफॉल्ट कहीं पे आती है ना वीडियोस, कहाँ आती हैं? पता है क्या तुम लोगों को? आई थिंक तुम्हारे पास तो, मैम दिस पीसी में जाके होता है, कहाँ? दिस पीसी में जाओ और वहाँ पे वीडियोस का होता है फोल्डर। दिस पीसी में जाके देन वेयर? मैम नीचे इसी में होता है ये। नथिंग। सेव नहीं है आपके इसमें आपकी वीडियो। हम्म, लेट मी सी। I don't even know what sort of video this will be. तो इससे वीडियो आ गई, अच्छा सॉरी, शो यू अगेन। हाँ, यहाँ पे हमें जो ध्यान देने की बात है वो ये, यहाँ पे देखो इंसर्ट मैंने भी डायरेक्टली कर दिया था, जो भी हमने वीडियो जहाँ पे भी सेव्ड है वहाँ से सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे दो तीन ऑप्शंस है, बट मेन दो ऑप्शंस है, इंसर्ट एंड लिंक टू फाइल। इन दोनों को समझो क्या होता है। अगर हम इंसर्ट करते हैं तो दिस वीडियो गेट्स इंसर्टेड इन आवर प्रेजेंटेशन। दिस मीन्स जो भी हमारी प्रेजेंटेशन का फाइल साइज है उसमें उस वीडियो का भी फाइल साइज ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ इफ दैट वीडियो इज वेरी लॉन्ग एंड यू वांट टू मेल दिस प्रेजेंटेशन, यू वोंट बी एबल टू, है ना, मेल में साइज लिमिटेड होता है। Instead of inserting, you give a link to the file, link to file।
सेकंड ऑप्शन जो है लिंक टू फाइल, उससे क्या होगा, वो आप लिंक उस पे बस बन जाएगा। यहाँ पे आपको वीडियो दिखेगी, यहाँ पे आपको वैसे ही दिखेगा जैसा इंसर्ट में होगा, मगर वो एक्चुअल में आपकी प्रेजेंटेशन में इंसर्ट नहीं होगी, वो आपके सिस्टम पे ही सेव्ड है, तो आप सिर्फ लिंक दे रहे हो, तो आपका फाइल साइज जो है वो छोटा ही रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी इंसर्ट करें अगर हम, तो इससे रिलेट देखो नीचे प्ले बटन आ गया है, सो दिस विल जस्ट द वीडियो विल बी प्लेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, एक्सक्यूज मी हाँ हाँ मैम, इन केस हम लोग जैसे फाइल से लिंक कर देते हैं, वीडियो को इंसर्ट नहीं करते हैं, तो फिर हम किसी को और मेल करते हैं तो वहां पे वीडियो प्ले नहीं क्योंकि वो होगा। आपके सिस्टम पे है, वो उसके पास कैसे पहुंचेगा। यस मैम। हम्म तो आप ये कर सकते हो ना, अगर आपके पास 2 फाइल्स हैं तो आप 2 मेल्स में भेज सकते हो। यस मैम, हम्म थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा हमारे हम्म भी। ओके, अब सेकंड ऑप्शन आया था फ्रॉम फ्रॉम एन ऑनलाइन फाइल। तो इसमें हम क्या करेंगे, एड्रेस फॉर दी ऑनलाइन फाइल, तो वो यूट्यूब पे जाके ऊपर पूरा जो उसका एड्रेस होता है उसे कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक मैम है, इसमें गूगल ड्राइव का लिंक भी एम्बेड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है, कोई भी आपके पास वीडियो है, या तो वो वीडियो से, या अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब की वीडियो से राइट क्लिक करके एक ऑप्शन होता है एम्बेड कोड, एक ऑप्शन होता है एम्बेड कोड, उस एम्बेड कोड को वहां से कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ठीक है मैम। हम करके दिखाना। हम्म पूरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक मिनट। हाँ, entire screen। This is a video. Right click, copy embed code. Copy embed code. I hope my screen is visible. यस मैम। यस मैम। हम्म फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन पे जाके पेस्ट, एंड इट्स लोडिंग आवर वीडियो फॉर प्रीव्यू। ठीक है, आ हम गई। वीडियो का लिंक कॉपी करना और ये कॉपी करना सेम बात है, दोनों है ना? सेम है, कैसे भी कर लो। लिंक यू नो ना, ये ऊपर यूट्यूब से पूरा यहाँ से एड्रेस बार से एज इट इज कॉपी करना है। इधर वे, चाहे यहाँ पे एड्रेस बार से कॉपी करो, चाहे वीडियो पे राइट क्लिक करके कॉपी एम्बेड कोड। ठीक है, वीडियो हो गया। अब आते हैं हम डिजाइन्स पे। डिजाइन्स पे देखो, थीम्स है, जैसे वर्ड में भी थीम्स थी, यहाँ पे थीम्स थोड़ी ज्यादा जरूरत होती है हमें। अपनी पूरी स्लाइड्स को देख लो यार, क्लिक करके देखो, जो भी आप थीम सिलेक्ट करोगे सारी स्लाइड्स पे वो अप्लाई हो जाएगी। मैम कलर, ऐसा होता है कि हमें अलाइनमेंट। एक लेट्स से फर्स्ट स्लाइड पर डिफरेंट थीम चाहिए एंड सेकंड स्लाइड पर डिफरेंट थीम चाहिए। How about you in that case? I don't think that's doable directly. होगा तो ऐसा हो सकता है, सेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे हमें अपनी स्लाइड्स पे। मतलब वी विल हैव टू से, अगर फर्स्ट को मेरे को अलग थीम चाहिए तो फर्स्ट के बाद एक सेक्शन ब्रेक, तो मतलब फर्स्ट हमारा एक अलग सेक्शन है, सेकंड ऑनवर्ड्स हमारा अलग सेक्शन है, अलग सेक्शंस बन के फिर शायद थीम्स डाल सकते हैं। आई हैवंट ट्राइड इट, लेट मी टेल यू। अगर करना है तो मतलब ट्राई करना पड़ेगा, दिस इज वन ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे सेक्शन का ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड के बाद हम ऐड सेक्शन कर दें,
तो वो अलग सेक्शन बन के उसके बाद शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अदरवाइज क्या कर सकते हैं हम, डिजाइन खुद कुछ ना कुछ डाल लें, कुछ भी, जैसे हमने वर्ड में हम कर सकते हैं ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई पिक्चर डाल दो या पूरा ब्लैक कर दो और उसके ऊपर शेप्स इंसर्ट करके हम बना सकते हैं। एनीवे मैं अभी क्लास में कराऊंगी भी, उससे पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। फिलहाल अच्छा, कुछ हमें थीम्स गिवन है, जो भी हम सिलेक्ट करते हैं थीम, उससे क्या होगा, फर्स्ट पूरा सिर्फ कलर चेंज नहीं होगा, पूरा लुक चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखो कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस सेंटर में आ रहा है, किसी में हो सकता है टॉप लेफ्ट में आए, किसी में हो सकता है राइट में आए। तो ऑल द अलाइनमेंट्स आर ऑल डिसाइडेड एज पर द थीम दैट यू सिलेक्ट। कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, ठीक है। थीम्स हो गई, इसके साइड में फॉर्मेट बैकग्राउंड, वही अगर कलर चेंज करना है आपको या बैकग्राउंड में कलर या कोई पैटर्न डालना है, तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड से डाल सकते हैं। मतलब अगर मेरे को थीम नहीं चाहिए, ब्लैंक किया, थीम से जाके फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैंक, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे से सॉलिड फिल, फिल में मुझे कलर ब्लैक चाहिए तो आई कैन सिलेक्ट इट, ठीक है। या फिर कोई पिक्चर चाहिए बैकग्राउंड में या कोई पैटर्न चाहिए, सो ऑल दीज ऑप्शंस आर आल्सो हियर। आप डायरेक्ट थीम नहीं यूज करना चाहते, आप अपनी अलग से थीम क्रिएट करना चाहते हो, दैट इज आल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशंस एंड क्या करते हैं। ट्रांजिशंस मतलब, जैसे इंग्लिश में ट्रांजिशन का क्या मतलब, यू मूव फ्रॉम वन फेज टू अनदर, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस का क्या मतलब है, यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। तो वो जो फर्स्ट स्लाइड से सेकंड स्लाइड जब आ रही है, तो उस पे अगर हम कुछ इफेक्ट्स डाल रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन। मतलब हम पूरी स्लाइड पे अगर हम कुछ इफेक्ट डाल दें कि वो कैसे डिस्प्ले हो, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। तो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड। ट्रांजिशंस में देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, साइड में एरो भी है, दो एरोज हैं, एक एरो से हम नीचे नीचे मूव करेंगे और उसके नीचे वाले एरो से हमें सारे ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो से आई सिलेक्ट वन ऑफ दीज ऑप्शन, रैंडम बार्स। तो देखा ये बार्स की तरह वो आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्रीव्यू का भी ऑप्शन है, प्रीव्यू पे क्लिक करने पे वो फिर से दिखाई दे रहे हैं कि ये कैसा दिखेगा। फर्स्ट पे ट्रांजिशन कर दिया, सेकंड पे ट्रांजिशन कर दिया, पुश अप, तो इट विल जस्ट सिंपली कम अप। अब अगर मैं स्लाइड शो करके दिखाऊं तो फर्स्ट पे वो रैंडम बार्स, सेकंड क्या हो रही है, पुश अप करके वो आ रही है। तो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशंस। अभी इनकी डिटेल्स में जाएंगे। एनिमेशंस क्या होते हैं, सिमिलर इफेक्ट्स अगर मैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे डाल दूं तो उन्हें बोलते हैं एनिमेशंस, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, पूरी स्लाइड पे जो हम इफेक्ट डालते हैं उसे बोलते हैं ट्रांजिशन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पे जो हम इफेक्ट्स डालते हैं उन्हें बोलते हैं एनिमेशंस, ठीक है। अच्छा, पूरी स्लाइड पे इस पे एक इफेक्ट है रैंडम बार्स वाला, दैट इज आवर ट्रांजिशन। अब इसका जो टेक्स्ट है, इसको मैं चाहती हूँ कि वंस अच्छा रैंडम बार्स बन के पूरी स्लाइड आ गई, उसके बाद ये जो टेक्स्ट है कुछ फ्लाई करते हुए आना चाहिए। देन व्हाट, ये object is selected. When this object is selected, I can select one of these animations that are given to us. अब यहाँ पे फिर से जो लास्ट एरो है उस पर क्लिक करके देखो, then you have different types of animations, groups हैं इसमें। फर्स्ट इज एंट्रेंस, कि अब वो ऑब्जेक्ट जब एंटर करे तो वो कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। फ्लाई इन, तो ये ऐसे फ्लाई करते हुए आ जाएगा, ऑल राइट। Then you have emphasis. Once it's there, once your object is there on your slide, you want some emphasis कि कुछ उसके ऊपर इफेक्ट्स हो, वो ग्रो श्रिंक करे या फिर वो फेड हो वापस से आए, ऐसा कुछ इफेक्ट। मतलब वो है आपकी स्लाइड पे फिर भी आप कुछ इफेक्ट चाहते हो, तो उसके लिए हम एम्फोसिस यूज करते हैं, एम्फोसिस के ऑप्शंस यूज करते हैं। थर्ड इज एग्जिट, कि वो वापस चला जाए, आए कुछ कुछ हो उसके ऊपर, कुछ इफेक्ट्स हो, इफेक्ट्स डालने, दे आर गिवन अंडर एग्जिट ऑप्शंस।
ठीक है, तो अब इस पे अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन पे क्लिक करते ही क्या होता है, एनिमेशंस जो हमने डाली हैं वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं, लिस्ट हो जाती हैं। अभी क्या हुआ इस पे, अभी सिर्फ एक एनिमेशन लिस्ट हो रही है। आई वॉन्ट टू एड एनिमेशन टू द सेम ऑब्जेक्ट, तो मैं एड एनिमेशन पे क्लिक करके एंड देन आई कैन सिलेक्ट वॉट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, तो अब सेम ऑब्जेक्ट पे मेरी दो एनिमेशन हो गई और वो दोनों कहाँ हो गई, एनिमेशन पेन पे लिस्ट हो गई। अब बट इसमें क्या हुआ, मेरी एंट्रेंस वाली बाद में मैंने डाली है, एग्जिट वाली पहले सेव हो गई, तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनकी पोजीशन चेंज कर सकती हूँ। और मैनेजिंग आवर एनिमेशंस, कौन कौन सी हमने एनिमेशन की है, उनका उनका टाइमिंग चेंज करना है, वो होंगी कैसे, मतलब वो क्लिक पे होंगी या क्या होंगी, वो सब यहाँ से एनिमेशन पेन से हम चेंज कर सकते हैं। एनिमेशंस में ही एक ऑप्शन हमारे पास मोशन पाथ्स का भी होता है। लास्ट इज मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स मतलब आप एक पाथ डिफाइन कर देते हो और वो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है उस पाथ पे वो मूव करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने अभी सर्कल आपको करके दिखाया, तो प्रिव्यू करें, इसको करते हैं सेकेंड। पहले एंटर के टाइम पे एक एनिमेशन, फिर उसके बाद एक मोशन पाथ, वो वहीं पे उसने सर्कल राउंड लगाया एंड देन उसने एग्जिट के टाइम पे दूसरी एनिमेशन की। ठीक है, फिर से transitions are effects on the whole slides, animations are effects on individual objects of the slide. On one object we can put in multiple animations. To manage animations we must open up an animation pane और उसके थ्रू हमें करना चाहिए। ठीक है, उससे हम मैनेज कर सकते हैं। और ऑप्शंस जो है अभी हम धीरे धीरे डिटेल में करेंगे। ये ना मैं ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, इन सब के लिए एक तुम्हें अभी एग्जांपल दिखाऊंगी और तुम लोगों को वैसे ही बनाने को बोलूंगी, तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे सारे इसके जो ऑप्शंस हैं, वो सब भी समझ में कुछ चाहिए, थेसॉरस चाहिए, उन सब के लिए दैट इज इट, दैट इज इट। मतलब ओवरऑल हमने थोड़े थोड़े से ऑप्शंस कर लिए, बट अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। Okay, I'll show you some presentations to give you ideas how it should be done. Moving on from the easiest to the most difficult. दिख रही है presentation? Screen दिख रही है? हाँ. So this is a Yes. presentation on a topic of some other subject, management accounting. So this is an image. Instead of using, it's a formal, it was a very formal thing that I had to present somewhere. So instead of using any theme, जस्ट अ सिंगल पिक्चर इज इंसर्टेड हियर। यहाँ पे कहीं और से मेरे पास ये पड़ा हुआ था पहले से आइकन, ये प्रिपेयर्ड था। दिस इज नथिंग, ये भी बल्कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पिक्चर्स। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक, ये दूसरा एक रेक्टेंगल टाइप का है, ऊपर एक ट्रायंगल टाइप का है, तो ये भी मल्टीपल। देन so I had to start with explaining
What's management accounting, cost accounting and financial accounting. So as I told you in the beginning, हम यहाँ पे सब कुछ नहीं लिखते हैं. मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है पूरी डेफिनेशन की कॉस्ट अकाउंटिंग इज दिस. नो, यहाँ पे सिर्फ तीनों चीजें दैट आई हैड टू शो दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर लिंक्ड समहाउ. So I just made 3 boxes और just main things कि मेन क्या बताते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, बस. ठीक है, ताकि डिटेल में जो बताना है वो मेरे को खुद बताना है, एग्जाम्पल जो देने हैं वो मुझे खुद देने हैं. ठीक है. देन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस. तो इसके लिए हम, इट्स अ प्रोसेस. तो या तो हम स्मार्ट आर्ट यूज करते थे या फिर हम अपने आप ही 5 बॉक्सेस बना सकते हैं, 4 एरोज बना सकते हैं, उनको अलग अलग जगह प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. दिस वाज सम एग्जांपल. टेबल्स आर इंसर्टेड. So this one was very easy. Next is ये किसी का कॉलेज का प्रोजेक्ट था. यहाँ पे देखना, अगेन कोई थीम यूज नहीं की हुई है, बैकग्राउंड वाइट रख के सब कुछ खुद फॉर्मेटिंग की हुई है. सो जैसे अगर हेडिंग्स देनी है अबाउट स्टारबक्स, तो ये एक इमेज अपने आप ही डाली हुई है, बट देन दिस इज डन ऑन एवरी स्लाइड सो एज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी. तो हर स्लाइड पे हेडिंग का फॉर्मेट सेम है. एक ग्रीन बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक ऑरेंज बॉक्स है और साइड में एक ग्रे बॉक्स है, बीच में एक कॉफी का सिंबल है. ठीक है. So this is done, everything is done by themselves. Boxes बना बना के अलग अलग colors use करके. So everywhere, even this kettle in between, it's an image. ठीक है. So you can use a theme or you can create your own theme. अगर वो थीम होता तो वो अपने आप ही मेंटेन करता, हर जगह का फॉन्ट सेम होना चाहिए, सब कुछ. यहाँ पे हमें बस खुद करना पड़ेगा. वी हैव टू एंश्योर कि हर स्लाइड पे फॉन्ट टाइप जो है वो सेम हो. इस स्लाइड पे देखो, नीचे ये मल्टीपल कप्स डाल डाल के एक बनाए हुए हैं. Lot of pictures and shapes are used. This is a smart art. Again a smart art. These are pictures. Okay, just one more. No theme used. Background black रखा हुआ है. This is an image, but ये machine learning simplified देखो कैसे लिखा है. इसके लिए multiple shapes यूज की थी. तो बीच में एक रेक्टेंगल, लेफ्ट में एक छोटा सा सर्कल, राइट में एक बड़ा सा सर्कल, और उसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर लिखा हुआ है. ठीक है. दिस इज द प्रेजेंटेशन, और जिसकी हम स्लाइड्स क्लास में कल प्रैक्टिस करेंगे कि इसे बना कैसे सकते हैं और इसके ऊपर एनिमेशंस कैसे डाल सकते हैं. एवरीथिंग इज, this is a line, these are 2 arcs.
लेफ्ट का मतलब पूरा सर्कल बनाने के लिए भी देयर आर 2 आर्क्स, और इसका रीजन क्या है आई विल शो यू। स्लाइड शो देखना, बड़े ध्यान से देखना। ये सर्कल देख रहे हो? Slideshow isn't visible. सॉरी, अब दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देख रहे हो, पहले राइट का हाफ सर्कल बनता है, फिर लेफ्ट का हाफ सर्कल बनता है। तो देखो, इसीलिए 2 आर्क्स डाले हुए, इंस्टेड ऑफ मेकिंग 1 सर्कल 2 आर्क्स डाले हुए हैं। सब अलग अलग शेप्स यूज करके और हर एक पे अलग अलग एनिमेशंस डाल के, एंड इनफैक्ट मल्टीपल एनिमेशंस डाल के दिस प्रेजेंटेशन हैज बीन मेड। This one, while the previous presentations that I showed you were college projects, this one is used in some company. This one is actually used and presented to clients. ठीक है, ये हम कल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एंड की और निटिग्रिटीज कल हम सीखेंगे कि ये करते कैसे हैं। ठीक है, आज के लिए किसी को कुछ पूछना है? मैम हम्म, मैम मैंने 2-3 मिनट लेट ज्वाइन करा था जब आप MS वर्ड के बारे में बता रही थी। तो मैम मेजर डिफरेंस क्या है पावर पॉइंट और MS वर्ड के बारे में, एक बार और बता दिए। वर्ड में क्या होता है, हम पूरा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, पेजेस, जैसे हम नोटबुक में लिखते हैं, पेज के बाद दूसरा पेज के बाद दूसरा पेज। बुक में है, बुक में क्या होता है, पूरे डिटेल में सब कुछ लिखा होता है। प्रेजेंटेशन का क्या है, जब हमें किसी ऑडियंस को कुछ बताना है हम तब यूज करते हैं, जहाँ पे हमें सिर्फ सब कुछ सिर्फ शॉर्ट में मेन पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंटेशन जो भी लेटेस्ट दिखाई थी, ये किसी क्लाइंट को दिखानी है। क्लाइंट के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के मशीन लर्निंग के ऊपर पूरा सब कुछ पढ़ेगा। कर रहे हैं अपना आइडिया कि दिस इज हाउ वी विल ऐड वैल्यू टू योर बिजनेस, तो उसके लिए उनको 10 मिनट के टाइम में हमें अपने आइडियाज कन्वे करने हैं। तो हम स्लाइड पे सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखेंगे ताकि क्लाइंट हमारे साथ बना रहे, मतलब उसका फोकस इधर उधर शिफ्ट ना हो, उसका टेंशन डाइवर्ट ना हो, बट सुनेगा वो हमारी बात, तो समझाना हमें है। स्लाइड्स पे हम सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाना होगा, वो हम MS वर्ड पे बना के उसको भेजेंगे कि भाई उसको डिटेल में पढ़ के साइन करना है क्लाइंट को। ठीक है, बट जो मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे उनसे किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो मैं खुद एक्सप्लेन करना चाहती हूँ फेस टू फेस, तो उसके लिए हम स्लाइड्स यूज करते हैं। हर्ष, Yes, ma'am. अनुष्का, अटेंडेंस बोलो Yes, सबका। ma'am. आलेख, Present, ma'am. निमिषा, Present, ma'am. आयुषी, Present, ma'am. जैनब, प्रेजेंट मैम। कार्तिक, Present, ma'am. चेतन, Present, ma'am. धनुष, Present, ma'am. रिदम, Present, ma'am. Present, गुण, ma'am. Present, ma'am. मधुर, Present, ma'am. दीपक, पीयूष, Present, ma'am. दीपक, Yes, ma'am. ओके, पीयूष, रोहित गुप्ता, Present, ma'am. ध्रुवित, Present, ma'am. वेदांत,
Present, ma'am. Ananya, Hardik, Present, ma'am. Puneet, Present, ma'am. Malika, Present, ma'am. तुषार. प्रेजेंट मैम. दो लोगों ने प्रेजेंट क्यों बोला है? मैम यू सेड अनुष्का ना. I said Malika. Malika के बाद तुषार, then Vineet, Abhishek Gautam, Present, ma'am. Mayank, Tazia, Present, ma'am. Yogesh, Present, ma'am. Irfan, Present, ma'am. Aditya, Present, ma'am. Keshav, Present, ma'am. Tanzeem, Present, ma'am. Anshul, Present, ma'am. Keshav Singla, Present, ma'am. Keshav Yadav, Abhishek Sharma, भव्य. Present, ma'am. Present, ma'am. फिर दो प्रेजेंट. मैम दो भव्य हैं. भव्य present, ma'am. 2710 भी भव्य है. मैम रोल नंबर 2732. 2732 ममता. ओके. यस. और निखिल खंडेलवाल, Present, ma'am. अनमोल Present, ma'am. अनमोल बहल. ओके. Present, ma'am. रूपल भट्ट, सुमनदीप कौर. अब बोलो किसकी रह गई? मैम मेरी 2596. 2596. Ma'am, 2315. एक मिनट. 2596 के बाद 2315. Ma'am 2611. 2611. Okay. Thank you. Class is over. See you people tomorrow. Ma'am. थैंक यू मैम. Ma'am, Yes. 2762. Thank you, ma'am. 2762. Sahil Wadhwa. Okay. Yes, ma'am. बेटा क्लास में क्या हुआ है? PowerPoint हुआ है. आपने Link. किया साथ में? Transition, animations. आपने सब साथ में किया? Yes, ma'am. आपने कैमरा Yes, ऑन ma'am. क्यों नहीं कर रखा है? पता नहीं था मैम. अब बता रही हूँ, हर क्लास में कैमरा ऑन रखना है. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. या मैम एक्चुअली while submitting the assignment मैं जब सबमिट कर रहा था तो उसमें ना प्रॉब्लम आ रही थी. गूगल डॉक्स से करने में फॉर्मेट डिफरेंट हो रहा था. नहीं, गूगल डॉक्स से नहीं करना है आपको. नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड Yes, करना ma'am. है Can I ना? show my screen? नहीं नहीं नहीं, यू डोंट हैव टू. वो फॉर्मेट डिफरेंट हो, उसे डाउनलोड करके देखूंगी तब फॉर्मेट डिफरेंट नहीं होगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. Okay, ma'am. मैम हम्म. मैं आज वाइवा दे सकता हूँ क्या? आप फ्री हो आज आप? मेरी क्लास होती है इसके बाद 6:30 एवरी डे होती है. तो मैम जो आप बोल रही थी डाउट क्लास लेंगे उसमें. मैंने आज ना 12:30 बजे ले ली थी. यार तो मैम फिर कल परसों तक. हाँ. मैं बताती हूँ. मधुर तुम ग्रुप पे हो ना? या मतलब मैं रिदम के साथ में कांटेक्ट में हो ना? मैं रिदम को इन्फॉर्म करती हूँ. कांटेक्ट में नहीं, मैं ग्रुप में हूँ उसके. हाँ हाँ, ग्रुप में हो ना? हाँ हाँ. वैसे तुम्हारी 4:30 क्लास नहीं होती ना? नो मैम 4:30 नहीं होती है. तो लेट्स डू वन थिंग. कल क्लास से पहले, तो कल 5 o'clock तुम आ जाना, ज्वाइन कर लेना. ठीक है? ओके मैम. मैम तीनों असाइनमेंट मैम एक्चुअली लास्ट वाले
मेल मर्ज में सब नॉर्मल, कुछ फैंसी नहीं चाहिए। ओके इवन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में भी मुझे कुछ फैंसी नहीं चाहिए। नो मैम, टेस्ट डॉक्यूमेंट में कुछ फैंसी नहीं है। ओके मैम, तो मैम कल तीनों साइड में दिखा दूंगा मैं। 5 o'clock 3 है, तो इनफैक्ट 5 o'clock ठीक है। 5 o'clock ओके मैम।